Good morning, class 11. So as we are discussing chemical bonding and molecular orbitals, okay, in chemical bonding we are discussing molecular orbitals. So I am continuing with that topic only. Okay, so in the last we have discussed in molecular orbital, right? In the last, what I have discussed the structure of helium 2 and hydrogen. Okay, that means helium molecule or hydrogen. Then we have even seen that when we are discussing about molecular orbital picture of helium, then what is there, their bond order is 0, which says that from which we can conclude there is a no bond that is existing between helium and helium, and that's why helium molecule does not exist, right? So continuing with the same topic, okay, hydrogen helium we have discussed. So next molecular orbital picture that I'm going to discuss with you, that is of helium 2 plus. So you can see here clearly, okay, you can see, please यहाँ देखिए. So you can easily see that helium here that is having a plus positive charge over helium, right? So helium 2 molecule मतलब one positive, that means there is a deficiency of one electron. That means in one of the helium there, although we know helium is having electronic configuration that is 1s2, right? Helium is having electronic configuration that is 1s2. So if helium is plus, right, if helium is in plus form, that means one of the helium is having electronic configuration 1s1. ठीक है, helium is having electronic configuration that is 1s2. if helium is in plus, then it is having electronic configuration that is 1s1. that one helium, right? So one helium is having 1s1. So accordingly, when I am going to make the molecular orbital picture of this, then we will have this is the atomic orbital, this is the atomic orbital, right? This is one helium, this is another helium, okay, one s orbital, here also one s orbital, right? अब देखिए, here the availability of how many electron, I will use a different pen ताकि आपको clear हो जाए, ठीक है? It's not working properly. So here you can see, here how many electrons are present, 2, and here how many electrons are present, 1 only. That in any of the helium you will have one electron, ठीक है? It's not compulsory कि इसी में रखना है, तुम्हें इसमें 1 रख लो, इसमें 2 रख लो, because both are equal, right? So accordingly what will be there, so they will intermix, mix होंगे फिर से, they result in the formation of like this. ऐसा कुछ होगा हमारे पास, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स विल बी देयर एंड वी विल हैव 2 electron in the lower shell, 1 in the higher shell, because lower shell will fill first, है ना, lower orbital पहले fill होगा. So यहाँ पे 2 electron fill हो गए, and the next electron will be filled in the higher molecular orbital, and this is, you already know, this is sigma 1s and this will be sigma star 1s, right? So when you will write the electronic configuration of this one, क्या सी electronic configuration, molecular orbital electronic configuration क्या आएगी? So we'll have sigma 1s2 sigma star 1s1. So this will be the electronic configuration. क्लियर है? So ये हमारी किसकी electronic configuration आई, helium 2 that is having one positive charge, right? अब जब मैं इसकी, ये तो आ गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. व्हेन आई विल टॉक अबाउट बॉन्ड ऑर्डर, जब मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग. सो बॉन्डिंग हाउ मेनी वी आर हैविंग, 2 minus 1 divided by 2, so it will be 1 by 2, that is a half. The bond order of helium that is half. So that means there is a chances, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इसके चांसेस हैं कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने के, क्योंकि इसमें जो एक ऑर्बिटल है दैट इज़ नॉट फुली फिल्ड, राइट, वो कंप्लीट नहीं है. नेक्स्ट वन मैग्नेटिक करेक्टर की अगर हम बात करें, सो द मैग्नेटिक करेक्टर ऑफ दिस वन इज पैरा. So like this you can make the orbital picture of any of the molecule. Next मैं आपको p orbital वाला दिखाती हूँ एक पिक्चर, ठीक है? सो हम यहाँ पे बात करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की,
ठीक है। नाइट्रोजन अगर मॉलिक्यूल की मैं पिक्चर बनानी है, सो नाइट्रोजन यू नो वन नाइट्रोजन इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। सो सेम सेकेंड नाइट्रोजन विल हैव, दोनों नाइट्रोजन की यही होगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सो जब आपने इसका पिक्चर बनाना है, सो व्हाट इट विल बी लाइक, ये कुछ कैसा होगा, यहाँ बनाती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्पेस ज़्यादा है, सो आई विल मेक हियर यहाँ, ठीक है। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम लोअर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 1s है, सो नाइट्रोजन का 1s, एक नाइट्रोजन का 1s और सेकेंड नाइट्रोजन का 1s पहले कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ओके। मैंने थोड़ा नीचे बनाया क्योंकि स्पेस ज़्यादा चाहिए। सो इट विल मिक्स एंड अगेन यहाँ पे एक लोअर एनर्जी पे हमारा आ जाएगा ऑर्बिटल, एक हायर एनर्जी पे ऑर्बिटल आ जाएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। 1s 1s, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे दोनों नाइट्रोजन के पास, 1s में 2 हैं, तो दूसरी नाइट्रोजन में 1s में भी 2 ही होंगे, सो 2 इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, द नेम ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिग्मा 1s, यहाँ पे होगा सिग्मा स्टार 1s। सो हियर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन एंड हियर आल्सो 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट 2s, सो फॉर 2s वी विल हैव, सी ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, ठीक है, ओके। किसके, नाइट्रोजन के, यहाँ नाइट्रोजन लिख सकते हो आप ताकि पता चले कि हम नाइट्रोजन का बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए, अब फिर से 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, सो 2 इलेक्ट्रॉन हेयर, 2 इलेक्ट्रॉन हेयर। सो फिर से ये कंबाइन हुए, कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा हमारे पास। अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 लोअर शेल में आ जाएंगे, 2 हायर शेल में चले जाएंगे। सो ये भी क्या हो गया, फुली फिल्ड हो गया। तो ये कौन सा था, 2s। अब हमारा नेक्स्ट कौन सा होगा, 2p। जब हम 2p की बात करेंगे, सो 2p हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर, 1 2 3। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैंने सर्कल बनाए हैं तो तुमने सर्कल की फॉर्म में ऑर्बिटल जो दिखाने हैं, आपकी विश आप स्क्वायर की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, सर्कल की फॉर्म में दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे p ऑर्बिटल्स हो गए, ओके, ये हमारे 2p ऑर्बिटल्स हो गए, ओके। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3, यहाँ भी 3 है और इधर वाली में भी 3 है, ठीक है। अब जब ये मिक्स होंगे, आपको पता है, ये मैंने बताया भी था लास्ट वीडियो में, जब ये मिक्स होंगे हमारे पास, अब जो हम 2p में बात करते हैं तो हमारे पास एक बनेगा सिग्मा, है ना, और एक हमारे पास बनेगा, 2 हमारे पास बनेंगे पाई, राइट। जब हम बात करते हैं सिग्मा, हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा 2pz बनेगा, और जो पाई हमारे पास बनेंगे वो पाई 2px और पाई 2py बनेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे जब ये मिक्स होंगे, सबसे पहले लोअर में आएंगे हमारे पास, यहाँ पे जो इक्वल एनर्जी पे हैं ये होंगे पाई 2px पाई 2py, ये 2 ऑर्बिटल हमारे यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो ये वाला ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल आएगा यहाँ पे, दैट इज़ सिग्मा 2pz, ये हमारे आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जब कौन से, बॉन्डिंग वाले, अब ऐसे ही इसके एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे क्योंकि 6 हैं, 3 बॉन्डिंग हो गए, 3 एंटी बॉन्डिंग हो गए। तो जब एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ये हो गया बेटा पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, ओके। एंड यहाँ पे आएगा आपका सिग्मा स्टार 2pz, ओके। सिग्मा स्टार जो एंटी बॉन्डिंग है, इसकी जो वैल्यू है, मतलब एनर्जी लेवल है, बहुत ज़्यादा हाई है, देखिए, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 2pz। अब एक चीज़ और मैंने बताई थी, व्हेन अप टू nitrogen we are having pi 2px and pi 2py, they are having the lower energy than sigma 2pz. But when we proceed toward oxygen, then this is having this bonding orbital has having lower energy than that of these two ऑर्बिटल्स, राइट। सो ये हमारे पास ऑर्बिटल्स पिक्चर बन गई। अब मेरे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 3 6, तो 3 ऑर्बिटल है मेरे पास नीचे, तो तीनों नीचे ही फिल हो जाएंगे, ठीक है, 1, ओके। यहाँ देखिए ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, सेकंड सेम स्पिन के साथ यहाँ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आएगा, ओके, और फिर यहाँ पे आएगा। उसके बाद
उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए टोटल 6 थे, यहाँ पे 4 हो गए, तो 5th इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। अब इनकी एनर्जी तो बहुत ज़्यादा है, तो 6th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, इसी ऑर्बिटल। ओके, एंड व्हेन वी विल से यहाँ पे आपने इसका एनर्जी भी शो करना है लाइक दिस, दैट एनर्जी विद एरो, दैट मीन्स एनर्जी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रही है। मतलब 1s की एनर्जी बहुत लो है 2s से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये देखिए ये एनर्जी लेवल दिखाया हुआ है। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल बी व्हाट, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अब उसके बाद कौन है, पाई 2px इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों सेम एनर्जी पे हैं, कॉमा नहीं डाला, इक्वल डाल के पाई 2py, और दोनों में कितना कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 2 2, राइट। उसके बाद कॉमा सिग्मा 2pz2। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ओके, अब ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। व्हेन यू विल कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर विल बी बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। सो बॉन्डिंग कितने हुए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। ये देखिए बॉन्डिंग कौन से, अगर मैं यहाँ से ही देख लो, यहाँ से देखो आप, ये बॉन्डिंग है, ठीक है, ये बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग है, और ये बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, ये वाला और ये वाला जो फील्ड है। सो बॉन्डिंग कितने हमारे पास, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 बॉन्डिंग है। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 4 एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2। सो यहाँ पे आएगा 6/2 इज इक्वल्स टू 3। सो ये आपको पता भी है कि नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाती है। सो नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, 3 बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अब ये पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक की बात करें तो आप देखो यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी देखिए पेयर्ड है ना, सारे पेयर्ड हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये क्या है, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो हो गया N2 सिंपल। अगर आपको बोला जाए N2 प्लस का बनाइए तो आपने क्या करना है, बाकी सारा सेम चलेगा, यहाँ से 2p में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है, ठीक है, किसी भी 2p में एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना। उसके अकॉर्डिंग आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। फिर उसी की वजह से यहाँ पे पेयरिंग भी नहीं होगी और पैरामैग्नेटिक आ जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी डिफरेंस आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि जब अगर N2 प्लस बोला है मतलब उसमें एक नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो आप उन यहाँ तक तो फिल्ड ही हैं सारे ऑर्बिटल, है ना। बाहर वाले शेल में से जाएगा तो बाहर वाला शेल कौन सा है, 2p, तो किसी भी 2p में से आप एक इलेक्ट्रॉन कम कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सारा चेंजेस आ जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में भी, बॉन्ड ऑर्डर में भी, और मैग्नेटिक करेक्टर में भी, ठीक है। और अगर आपको बोला जाए N2 नेगेटिव है तो मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना है, वो आप किसी भी साइड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है वो भी तो बाहर वाले शेल में ही होता है। सो बाहर वाला शेल कौन सा है, 2p है, ठीक है। सो वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग जो अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहाँ जाएगा, क्योंकि यहाँ तक सारे ऑर्बिटल फिल है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। अब एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो यहाँ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद अगर और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ जाएगा। मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आते हैं आपके पास तो तुम ऐसे नहीं करोगे कि दोनों के दोनों यहाँ फिल कर दोगे, नो, आप एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल करेंगे, बिकॉज बोथ आर ऑफ इक्वल एनर्जी। ये ऐसे देखिए हम 2p जब फिल करते हैं ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, राइट, तो हम कैसे करते हैं, हम p ऑर्बिटल फिल करते हैं, हम ऐसे करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, सेकेंड यहाँ पे, हम ऐसे तो नहीं कर देते ना, नो, हम क्या है, जो ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी पे है दे आर इक्वली फिल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे करना है, ठीक है। अब नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, 2 नेगेटिव है तो तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक करेक्टर और हर चीज़ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो ये ऐसे ये स्ट्रक्चर था नाइट्रोजन का। अब जब आप ऑक्सीजन का बनाओगे तो ये जो है सिग्मा 2pz वो नीचे आ जाएगा, पाई 2px और पाई 2py ऊपर चला जाएगा, रेस्ट जो है वो सेम प्रोसीजर फॉलो हुआ। और आप यहाँ पे देखिए आपकी बुक्स में समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 1s नहीं दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि 1s है नहीं है, ठीक है, 1s इज़ देयर बट दे आर नॉट शोइंग, क्योंकि इसका मतलब वो सिंपली 2s से स्टार्ट कर लेते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपने 1s मतलब नहीं दिखाया तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, नो, बुक्स में नहीं दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको मतलब इट इज़ जनरल के आपको पता होगा कि पहले 1s आया फिर 2s आया। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 2s से तो आपको शो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप सीधे 2p पे चले जाएंगे,
ओके, सो ये कुछ थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर्स, ठीक है। सो बाय विच वी केम टू नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें यहाँ से कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या है, उसकी स्टेबिलिटी, ठीक है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन इस हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दी थी, ठीक है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, दैट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. So the next topic, the last topic which I am going to discuss with you, hydrogen bonding, right? So in case of hydrogen bonding, ये एक ऐसी तरह का बॉन्ड है जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा. So what is hydrogen bonding here? That what happened that suppose we are having the solution of hydrogen fluoride. Hydrogen fluoride, okay. So what will happen? Hydrogen fluoride means HF. Okay, so you know that hydrogen is the smaller atom that is electropositive in nature, okay, but ये इतना अच्छा electropositive नहीं होता, but still it is electropositive. And this fluoride, you already know, most electronegative element in nature, right? So what will happen, as this bond is considered to be covalent bond because this is formed by sharing of electron from one from hydrogen, one from fluoride, right? Sharing से ये bond बना, so we consider this to be a covalent bond. Now what happened, due to the difference of electronegativity, right? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये बॉन्ड हो जाता है पोलर, राइट? दिस बॉन्ड इज पोलर, दैट इज पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, राइट? So what happened, this hydrogen atom that is electropositive in nature, it formed the interaction with the other atom that is electronegative in nature, okay. It form a weak interaction with the other atom that is electronegative in nature. The same, this atom that is electronegative, this form interaction with the hydrogen atom that is electropositive in nature. So this weak interaction between the electronegative atom and the hydrogen, the weak interaction between, ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, द इंटरेक्शन, उसके अलावा जो इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड द हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज अ hydrogen bond. This is a weak interaction, okay. This is a weak interaction that is existing between the electropositive hydrogen and electronegative element, right? Now the strength of this bond is that it need only 10 to 40 kilojoule, okay, of energy पर मोल. इसको सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए टू ब्रेक द बॉन्ड, पर मोल के लिए 10 to 40 किलो जॉल, मतलब ये बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, बट स्टिल इट एग्जिस्ट, ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन. द अट्रैक्टिव फोर्स which bind hydrogen atom of one molecule, the attractive force which bind the hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule, hydrogen atom of one molecule with the electronegative atom of another molecule is known as hydrogen bonding, is known as hydrogen bonding or hydrogen bond, ओके. सो अब देखिए, ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इट एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइट? तो इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट है केमिस्ट्री में. अब ये देखिए, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड ऐसा नहीं है कि नेचर में भी, बेटा यहाँ पे देखिए, एक अगर आप सोल्यूशन लेते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड का, तो मतलब उस हाइड्रोजन फ्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर, मतलब उसमें कितने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड के, तो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज बॉन्डेड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन, ऑटोमेटिकली उनमें एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है. देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ द बॉन्ड देयर, ओके, एंड दैट बॉन्ड इज नोन टू बी अ हाइड्रोजन बॉन्ड. क्लियर है?
अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो थी हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओके। अब बात करेंगे कंडीशंस क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, आपको साफ दिख रही है हमसे। एक तो जो आपका एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जितना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही वो क्या होगा, उसके चांसेस होंगे कि अपना जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है उसको आयनिक बनाए, जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, दूसरा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का साइज भी क्या होना चाहिए, स्मॉल। सो फर्स्ट, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ऑफ एटम, एक तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए एटम की, सेकेंड स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव, क्योंकि आपको पता है कि अगर लार्ज साइज़ होगा, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया भी हुआ है कि जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का बॉन्ड है, ये क्या होता है हाइड्रोजन आयोडीन का बॉन्ड, ये कोवलेंट हो जाता है, क्योंकि पोलराइजेशन हो जाती है, फरजान रूल मैंने आपको करवाया है, उसकी वजह से ये बॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग टू बी आयनिक ये कोवलेंट हो जाता है। इसीलिए एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव तो होना ही चाहिए और उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ उसका साइज़ भी स्मॉल होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि वो सिर्फ फ्लोराइड ही होगा, वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई क्लोराइड भी हो सकता है, ठीक है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, बिकॉज दीज ऑल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ओके। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूँ तो एग्जांपल में आपको मैं बात कर लेते हैं हम किस किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। जैसे हम हाइड्रोजन फ्लोराइड का सोल्यूशन हो गया, ओके, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ वाटर, हम जो वाटर लेते हैं यूज़ करते हैं, इन दैट व्हाट एग्जिस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी की वजह से जो वाटर की कुछ अनॉमलस प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी हम बात करेंगे, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल, राइट। देन इसमें कैसे एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं बात करूँ, ये ऑक्सीजन है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो हो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे, नेक्स्ट हाइड्रोजन होंगे, उसके साथ ये इंटरेक्शंस बना लेगा लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट फिर से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, नेक्स्ट हाइड्रोजन के साथ इंटरेक्शन बना लेगा लाइक दिस। सो हियर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट एग्जिस्ट, ओके। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मैं बात करूँ थर्ड एग्जांपल, दैट इज़ ऑफ अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो व्हाट इट विल डू, इट विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक अमोनिया जो है इट इज़ हैविंग अ पिरामिडल शेप, आपको पता है, ठीक है। सो फ्रॉम दिस साइड नाइट्रोजन गेट form interaction with what, with the hydrogen molecule like this, ठीक है, so like this. So this is what, this is a hydrogen bond, that is just a type of interaction कह सकते हो आप, ओके। सो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये तो थी मैंने बात की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरह की होती है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए, एक होती है इंटर मॉलिक्यूलर, के इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द नेक्स्ट विल बी द सेकेंड वन क्या होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर। आपने सुना होगा स्कूल कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटर स्कूल, एक होता है इंट्रा। इंट्रा मीन्स दैट इज इन द सेम स्कूल में होना, ठीक है। अब जब इंटर की बात करते हैं हमें, इंटर जो होते हैं जैसे इंटरनेशनल लेवल के, इंटरनेशनल मीन्स विद द अदर्स nations, right? So same here, intermolecular means with the different molecules, intra means within the molecule, right? When I will discuss the examples तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है।
सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? प्लीज नोट डाउन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. Intermolecular hydrogen bonding is formed between two molecules of same or different substance. लाइक इंटर में मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ. इंटर की मैं एग्जांपल की बात करूँगी. अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो एग्जांपल होगी इंटर में, दैट विल बी, इसकी एग्जांपल दैट इज़ लाइक हाइड्रोजन फ्लोराइड. सो यहाँ पे जो है एक ये मॉलिक्यूल है, एक ये अनदर मॉलिक्यूल है. तो इसके साथ जो बॉन्डिंग है दैट इज़ इंटर मॉलिक्यूलर. ठीक है, ये इंट्रा नहीं है, ये इंटर मॉलिक्यूलर. मतलब मॉलिक्यूल तो एक ये है, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है. तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है दैट इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अलावा ये इंटर है. और अगर मैं बात करूँ, जैसे हम यहाँ पे बात कर सकती हूँ अल्कोहल की. अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं हम, CH3OH. ठीक है, मान लो ये मीथानोल है. तो मीथानोल को अगर मैं ओपनली बनाऊँ इट विल बी लाइक, ये होगा कुछ. अब मीथानोल की किसके साथ इंटरेक्शन? वाटर के साथ. तो मीथानोल और वाटर भी आपस में क्या करते हैं? दे शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, बिकॉज लाइक डिसॉल्व लाइक का कंसेप्ट होता है यहाँ पे. ये भी पोलर होता है, ये भी पोलर होता है. सो पोलैरिटी की वजह से इनके बीच में, यहाँ देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ भी. सो यहाँ पे भी पोलर बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पे भी पोलैरिटी आ जाती है. ये नेगेटिव नेचर है. सो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्शन शो करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो अ इंटरमॉलिक्यूलर. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर कैसे हो सकती है? सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में भी हो सकती है. ठीक है, अब जो मैं इंट्रा की बात करती हूँ, इंट्रा का मतलब क्या है? इंट्रा में जैसे मैं बात करूँ, हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक बेंजीन है. ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पे, ठीक है, उसके एडजेसेंट पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड है. सो इसके ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ये जो होगी दैट इज़ इंट्रा. इंट्रा मीन्स दैट इज़ विद इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करे विद इन द मॉलिक्यूल, दैट इज़ इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. राइट? ओके, सो प्लीज नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ दिस वन. द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग exist between the hydrogen atom and electronegative atom, hydrogen atom and electronegative atom of same molecule, that is intramolecular hydrogen bonding. That is intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब ये नहीं है कि मैंने यहाँ पे सिर्फ HF की एग्जांपल ली तो HF में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. बहुत सारे कंपाउंड्स हैं बेटा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है. ठीक है, देयर आर लॉट्स ऑफ कंपाउंड्स जिसमें ऐसी इंटरेक्शंस, मतलब एक कोवलेंट बॉन्ड तो था ही उस, और कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड था, लेकिन उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आ गया उसमें. ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस आ गई जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. चाहे ये बॉन्ड वीक है लेकिन एक तरह से उसमें लिंकेज तो आ गई जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल जो भी है वो उसमें जो इंटरेक्शंस है और बढ़ गई. ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी की तरफ और मूव कर गया. ओके, सो ये थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे इम्पैक्ट करती है मॉलिक्यूल्स को? ठीक है, सो इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या इन्फ्लुएंस है? नंबर 1, एसोसिएशन. जैसे एसोसिएशन में हम बात करेंगे, मैं यहाँ पे बात करूँगी लाइक एसिटिक एसिड. जो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है बेटा, सो इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर लाइक दिस.
ऐसे कुछ ये क्या करता है, दूसरा मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे it make the interactions with the another molecule of acetic acid, right? So it exists as a dimer means two times, मतलब ये एग्जिस्ट करता है, सिंगली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, इट रिमेन एज अ डाइमर, जिसकी वजह से इसका जो एक्सपेक्टेड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है उससे जो इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। रीज़न क्योंकि ये क्या करता है, इट फॉर्म इंटरेक्शन विद द अनदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑफ द एडजेसेंट एसिटिक एसिड एंड सेम दे विल फॉर्म इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर, राइट। सो ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे ही कोई बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये आप 10th में पढ़ के आए हैं। सो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वो डाइमर की फॉर्म में इसीलिए एग्जिस्ट कर पाते हैं, एसोसिएट कर पाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो यहाँ पे फर्स्ट इन्फ्लुएंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, दैट इट लेट द मॉलिक्यूल्स टू बी एसोसिएटेड, ओके, क्योंकि ये एक वीक इंटरेक्शन है तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को कंबाइन होने में हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका इन्फ्लुएंस क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये तो होगा ही बेटा। अब क्या होता है, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी, ये हमेशा याद रखना, जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी तो उनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा, मतलब उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा। वो इंक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा इंटरेक्शंस आ जाएंगी, ठीक है, इसीलिए उनका टेम्परेचर एट विच दे विल मेल्ट और बॉयल दैट विल इंक्रीज, राइट। सो द नेक्स्ट वन, इन्फ्लुएंस ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट पे कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। वाटर जो है वो लिक्विड होता है, ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कोई, व्हाई वाटर इज लिक्विड वेयर H2S इज अ गैस, व्हाई इट इज, वाटर लिक्विड है, H2S गैस है। रीज़न इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, बिकॉज इन वाटर व्हाट एग्जिस्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड, वेयर एज इन दिस नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इम्पैक्ट ऑन द physical nature of water and water become liquid, whereas hydrogen sulfide in that, as sulfur is less electronegative in nature, so that's why as compared to oxygen, sulfur जो है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सल्फर जो है that exists to be a gas, okay। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है सॉलेबिलिटी, नेक्स्ट इम्पैक्ट है सॉलेबिलिटी में भी इम्पैक्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉलेबिलिटी। अब सॉलेबिलिटी में जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने देखा होगा अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल है, क्यों है, क्योंकि अल्कोहल, ये मैंने ऊपर भी एग्जांपल बात की थी, अल्कोहल फॉर्म इंटरेक्शन विद द वाटर, कौन सी इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So due to hydrogen bonding with the water, alcohol is soluble in water. So hydrogen bonding impact the solubility also, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सॉल्युबिलिटी के भी ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास एक दो क्वेश्चंस हैं जो लास्ट होंगे इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिलेटेड, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाई आइस इज लाइटर देन वाटर, व्हाई आइस इज lighter than water. So my question is, why ice is lighter than water? This is my question, why ice is lighter than water? Although we know ice is solid, water is liquid, but still ice float over water, है ना। ice lighter है, float करती है water के ऊपर, why it is, क्यों float करती है, the reason because the water molecule क्या करते हैं, they form hydrogen bonding, ओके। अब जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखिए वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है, दैट इज़ बेंट शेप, वाटर बेंट शेप होता है, आप पढ़ के आए हाइब्रिडाइजेशन में। सो व्हाट हैपन लाइक दिस, वाटर बेंट शेप होता है। सो यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या करेगा, नेक्स्ट और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं। सो और वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, लाइक दिस। सो व्हाट दिस विल डू, दिस विल फॉर्म अ इंटरेक्शन लाइक दिस, ऐसा कुछ
स्ट्रक्चर बना लेगा, ठीक है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल होगा, सो यहाँ पे ऑक्सीजन कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल होगा, सो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, ऐसे। सो व्हाट विल is what we are observing, that the oxygen molecule that is electronegative in nature and hydrogen electropositive, so they form a hydrogen bonding with each other. Due to that hydrogen bonding, although when water get freezes, but due to this hydrogen bonding, there are the vacant spaces in the ice. Okay, there exist vacant spaces in the ice, due to which the ice float over water. इसी की वजह से आइस क्या करती है, वाटर के ऊपर फ्लो करती है, क्योंकि जब वाटर लिक्विड है, हमने बात कर ली, तभी उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लाइक दिस। सो व्हेन इट स्टार्ट फ्रीजिंग, वो फ्रीज हो गया, वो आइस बन गया। आइस बनने के बाद भी लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, उसका ऐसा अरेंजमेंट होने की वजह से, स्टिल द वेकेंट स्पेसेस आर देयर। उस वेकेंट स्पेसेस की लाइटनेस की वजह से आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई वाटर has maximum density at 4 degrees Celsius. Why water has maximum density at 4 degrees Celsius? So अब वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 0 डिग्री पे वाटर क्या एग्जिस्ट करता है, आइस। अब 0 डिग्री से जैसे ही टेम्परेचर क्या हो जाए, इंक्रीज होना शुरू होगा, दैट मीन्स आइस चेंजेस इनटू वाटर, ठीक है। अब वाटर कहते क्या है, वाटर इज ऑब्जर्व टू बी डेंसर एट 4 डिग्री सेल्सियस। होता क्या है, अब जैसे कहते हैं वाटर में वेकेंट स्पेसेस है, वो ये क्या है, ये सपोज करो फ्रीज्ड है, ये आइस है। सो जब वो मेल्ट होना शुरू होता है, ठीक है, तो उसकी जो वेकेंट स्पेसेस है उसमें क्या शुरू होना हो जाता है, द वाटर स्टार्ट एंटरिंग। जैसे आपने देखा होगा आइस जब मेल्ट होना स्टार्ट होती है तो उसकी जो वेकेंट स्पेसेस होती हैं, इन दैट द वाटर स्टार्ट एंटरिंग, राइट। जब उसमें पानी अंदर जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, पानी उसके अंदर जाता है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन एट दैट पॉइंट, कहते वाटर की जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम काउंट की जाती है, इसीलिए बोला जाता है दैट वाटर हैज़ हैविंग द डेंसिटी मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 4 डिग्री से टेम्परेचर फर्दर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। सो इसकी वजह से कहते क्या है, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फिर दूर दूर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी फिर से क्या हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पहले तो कम होती थी, आइस में डेंसिटी कम होती है, आइस लेस डेंसर है देन वाटर, ठीक है। अब जैसे आइस मेल्ट होना शुरू हुई, वहाँ पे क्या है, उसकी वेकेंट स्पेसेस में पानी जाना शुरू हो जाएगा। सो उसकी वेकेंट स्पेसेस टोटली कवर हो जाएंगी वाटर के साथ। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस इट इज़ ऑब्जर्व्ड कि उसकी टोटल वेकेंट स्पेसेस क्या है, दैट इज़ कवर्ड विद वाटर, राइट, पानी के साथ पूरी भर जाती हैं। आफ्टर दैट व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, कि आफ्टर फर्दर इंक्रीज जब होता है टेम्परेचर, तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एक दूसरे से दूर दूर जाना शुरू कर जाते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी में डिक्रीज फिर से ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है दैट वाटर इज हैविंग मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। Okay, here the your unit chemical bonding and molecular structure, that is finished over here. So if you have any doubt you can ask me. We will start with the next unit, that will be states of matter in the next video. Thank you very much.